थोड़े इनके मूड स्विंग्स होते हैं, पर ये हे भगवान, दिल से बहुत ना बदनाम करके तो मुझे मूड स्विंग्स भी आ गए। In this project, I can't tell you much, but I think कुछ चीजें आपके अंदर ही रह जाती हैं, but वो इतनी स्पेशल होती हैं कि वो शायद जिंदगी भर आपके साथ रहती हैं. Thank you so much for joining us on Instant Bollywood. I'm Divya, and it's so nice Hi, to Divya. meet you all. Hello. Hi. Thank you. It's my pleasure, and it's so nice to see all of you together. And congratulations on the new project. Thank you. Likewise. Divya. Thank you for having us. So, starting off on a bright note, because we know that this pandemic has been a little tough, you know, with us not being able to go out, movement is very restricted. What have y'all been doing in terms of keeping a positive mental health? I try and meditate whenever I can. I guess music is healer. I feel it heals me. Yeah. Why are you laughing? You only said this now. Because you're there on the screen. Okay, so yeah. Apart from that, see, I'm very busy with the household work. Like I do everything myself, so that keeps me busy. I'm also doing all the work by myself only. Just like before 7 days, I got that iRobot who is doing jhadu pocha at least. So I only have to do bartan. Is it good? So Is it good? nice. Exactly. You I wanted should to ask also the get same. it. It is mind blowing. It is Oh. mind blowing. You all should get it, and you will be No, I will. complete relaxed after that. You नहीं, should. जरूरत And है, जरूरत है. I did my haircut also by myself. I'm doing And everything you're looking myself. so good. I have been wanting to tell you. Nice. That's Oh, nice. thank you. And actually, I'm trying to do everything myself. I'm preparing myself कि आगे भी अगर कुछ ऐसा हो तो I'll be able to do We everything can by take care of myself. ourselves. Yeah. Right. Nice. Right. Stebin, are you also? That's true. Yeah, I'm spending a lot of time with my family. Step in. since my family is here home, they're in Bombay, तो काफी time family के साथ spend करने का मिल रहा है. और Wow. काफी टाइम मैं म्यूजिक को दे रहा हूँ क्योंकि जनरली मैं हमेशा बहुत ट्रैवल करता हूँ, तो मैं शोज में इधर उधर ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मुझे काफी ज्यादा पर्सनल एक अच्छा स्पेस नहीं मिल पाता है घर पे, जो मुझे काफी मिल रहा है. सो आई एम स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम. टाइम स्पेंड कर रहे हो? बस म्यूजिक, फैमिली और बस फ्रेंड्स. That's all. Lucky That's guy. awesome. That's awesome. And since this is about your music video, I want to know, or rather the fans would also like to know, what are your current favorite songs on your playlist? And since I'm a singer, तो मैं बहुत सारे गाने सुन रहा हूँ इस वक्त, और मैं देखता रहता हूँ कि नए गाने कैसे आ रहे हैं, और जो कौन से नए आर्टिस्ट के नए गाने कैसे लग रहे हैं, और कौन से गाने ट्रेंडिंग पे चल रहे होते हैं, तो मैं हर वक्त सुन रहा होता हूँ. तो जैसे काफी सारे नए आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, काफी सारे पुराने आर्टिस्ट भी हैं जिनके गाने काफी अच्छे चल रहे हैं, तो उनके गाने भी सुन रहा हूँ. और सबसे ज्यादा अपने खुद के गाने बहुत ज्यादा सुनता हूँ, क्योंकि जो मेरे गाने मैंने गा दिए होते हैं जो अभी रिलीज होने वाले हैं, तो उनको मैं काफी सुन रहा होता हूँ और अपनी मिस्टेक्स ढूंढ रहा होता हूँ कि इसमें क्या और मैं कर सकता हूँ, कितना अच्छा और कर सकता हूँ. सो बस इट्स मजा आ रहा है अपने गाने सुनने में भी. That's awesome. And what about you, Shaisa? I guess meditation music, as I Okay. said. Yeah. That's cool. That's really interesting. So now I have a question for the singers in the house, especially. Can you tell us a little about your creative process? How exactly do you go about before, the making of a track? See, first, so we need a good lyrics, and lyrics has been written by Kunal Verma, जिन्होंने मेरे almost हर गाने को लिखा है, like तुम ही आना, जो मेरा ऑलमोस्ट पहला गाना था एज अ कंपोजर. एंड तब से हमारी जर्नी शुरू हुई है, एंड कुणाल वर्मा ने लिखा है. एंड मेरे पास राइटिंग आई, एंड मैंने कंपोज किया हुआ था ऑलरेडी ये सॉन्ग. मैंने उनको धुन भेजी हुई थी. एंड आदित्य देव जो मेरे हस्बैंड भी है एंड म्यूजिक प्रोड्यूसर भी है, उन्होंने ट्रैक क्रिएट किया, एंड फिर मैंने डब किया. फिर उसके बाद एक सबसे बड़ी चीज होती है कि मैंने तो गा दिया, उसके बाद क्या, तो मेरे जितने फेवरेट्स हैं मेरे माइंड में चलते रहते. तो लगा स्टेबन, क्योंकि स्टेबन की आवाज बिल्कुल अपफ्रंट, बिल्कुल इतनी प्यारी आवाज है, मखमली आवाज है, मैं तो ये कह सकती हूँ.
तो मुझे ये लगा कि स्टेवन की आवाज में बहुत अमेजिंग लगेगा। एंड वायरल ओरिजिनल्स का पूरा पूरा आइडिया था कि ये बारिश में हमें वापस से आना चाहिए साथ में। एंड साथ में हमें बाद में पता चला कि उसमें हिना भी है एंड शहीर भी है। तो मैं बहुत बहुत खुश हो गई। एंड मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, मैं हिना को पता बहुत पहले से फॉलो करती हूँ। जब मैंने डेली सोप्स देखती थी, आपका वो था अक्षरा। एंड जी आप जी, मेरी इतनी फेवरेट कैरेक्टर हो उस वक्त थैंक से यू, मैं बता रही हूँ। एंड थैंक जब यू आप पायल। सैड होते थे तो मैं दुखी हो जाती थी कि इनके साथ ये ओह, क्यों हो रहा है, आप खुश होते थे तो मैं खुश हो जाती थी। तो ऑफ कोर्स थैंक यू। मतलब आप दोनों बहुत बहुत फेवरेट हो हमारे। एंड वायरल के साथ काम करना इट्स लाइक अ फैमिली टुगेदर। एंड सेवन के साथ भी ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ऑनेस्टली अगर आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछोगे तो मैं यही बोलूंगा कि सिंगर्स के लिए ना बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है कंपोजिंग में, या फिर हम लोग के लिए यही होता है कि हम स्टूडियो विजिट करते हैं और गाना ऑलरेडी बना हुआ होता है, तो सबसे ज्यादा टैलेंट और सबसे ज्यादा मेहनत जो करी होती है ये पूरी ऑलरेडी म्यूजिक डायरेक्टर्स ने और अरेंजर्स ने करी होती है। शायद बहुत कम लोग को पता होता है ये, क्योंकि जब लिरिक्स रेडी होते हैं उसके बाद एक म्यूजिक डायरेक्टर बहुत समय स्पेंड करता है। अब मान लो महीने महीने लगते हैं गाने कंपोज होने में, और उसमें आइडियाज चेंज होते रहते हैं कि गाना कितना अच्छा बन सकता है और कितना अच्छा हो सकता है। और डेफिनेटली क्रेडिट मैं काफी ज्यादा देना चाहूंगा पायल दी को, क्योंकि ये गाने बहुत ही खूबसूरत बनाती है। इनके अलग अलग अंदाज है गाने बनाने के, कुछ 90s तो कभी नए ट्रेंड को भी लेकर चलती हैं ये। और 90s में भी इनका म्यूजिक बहुत ही क्लासी होता है, जिसमें क्योंकि आदित्य देव हमारे इंडस्ट्री के बेस्ट प्रोड्यूसर है, म्यूजिक प्रोड्यूसर है, तो उनका जब वो जब अपनी तरफ से काम करते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे होते हैं गाने में, गाने बहुत क्लियर और बहुत अच्छे से बन के आते हैं। और ये काफी कंफर्टेबल भी फील करवाती हैं, क्योंकि मेरा ये थर्ड सॉन्ग है इनके साथ। और जब भी मैं इनके स्टूडियो विजिट किया है या जब भी मैंने गाया लॉकडाउन में, हम लोगों ने अपने अपने घर से भी जब डब किया है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि बहुत ही इजी हो जाता है जब ये रहती हैं, तो ज्यादा टेक्स नहीं करवाते हैं मुझसे काफी जल्दी जल्दी में और कंफर्टेबल फील करवा के मेरे डबिंग्स वगैरह इजीली हो जाते हैं, और उसके बाद गाना इतना अच्छा साउंड करता है इन्हीं लोग की वजह से। So sweet, yeah, Stephen. That's really nice. Thank you so much. All right. Now I have a question for you, Shaheen sir. So I would like to know, what is the best advice that you've ever been given from the beginning of your career? I remember asking my father before shifting to Mumbai when I was offered a Disney show. He told me that you're a grown-up guy now, you can take your own decisions. So I guess his belief in me. I don't know. This is what I can remember right now, but I think Shahir is being very modest. वो मैंने शहीर के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताया है, बट जितना भी वक्त मैंने बिताया है, आई थिंक ही इज वेरी हम्बल। और मुझे लगता है उनके अंदर जो ह्यूमिलिटी है वही इनको आगे ले जा रही है। ही इज हम्बल। थोड़े इनके मूड स्विंग्स होते हैं, पर ये हे दिल के भगवान, दिल से बहुत ना बदनाम करोगे तो मुझे मूड स्विंग्स भी आ गए। but he is very very humble, like a man full of humility, chivalry. I did see that. तो ये मेरी तरफ से है जो मुझे दिखा इन 1.5 दिनों में। ज्यादा टाइम मैंने स्पेंड नहीं किया, शायद कुछ बुराई भी कर लेती, पर मिलेगा, उसका भी मौका मिलेगा आपको। बुराई बची है अभी कुछ करने के लिए। no, I'm just pulling your leg, Shahir. He's a very nice person, very nice person. नहीं, मेरे लिए एक छोटी सी चीज मेरे डैड ने मुझे हमेशा कही है, और मैं इस चीज को हमेशा याद रखूंगी, that wherever you reach in life, always keep your head on your shoulders, and stay grounded. एंड वही ह्यूमिलिटी की ही बात आ जाती है इवेंचुअली, कि आप हम्बल रहें और अपने काम की इज्जत करें, चाहे वो एक कोई छोटा प्रोजेक्ट हो या बड़ा प्रोजेक्ट हो, हमेशा अपने काम की इज्जत करें। इसलिए शायद मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ, विच इन अ वे आई ऑल्सो फील, जो कि मुझे काफी लोग बोलते हैं, शहीर भी कहते हैं, कि मैं बहुत ज्यादा स्पेंड कर देती हूँ अपने आप को, चाहे वो 2 दिन का शूट हो या 10 दिन का शूट हो, बट दैट्स हाउ आई एम, लाइक आई जस्ट इन्वॉल्व माई सेल्फ कंप्लीटली इनटू इट. So I think you got to have that humility, and you got to keep your head on your shoulders wherever you reach. So I kind of follow it.
Yes, sir. Divya, I'm Go ahead. sorry. I have to go now because my shoot has started. Yeah. No so problem, sir. मैं जा रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी इतनी बेइज्जती की है. Thank you so much, guys. I love you. Thank you. Bye. Thank you Bye. so much for Thank you, joining. Thank you, Shahid. Shahid. Thank you. Thank you, Bye, and all guys. the very best. Tina ma'am, what exactly attracted you to music video? Shit, ये शहीद के सामने क्यों नहीं पूछा है question? Shit. Oh, Shahid. really? No, I think it was the song. The song was Okay. amazing, and since I knew that the first song, Barish, which is there, I can't tell you much about it honestly. You will hear it by yourself tomorrow. But बहुत सारे छोटे छोटे pieces हैं, जो आपको connect करते हैं, जो पहला बारिश song था. So it kind of connected me, and I really liked the song. और जब मैंने सुना कश्मीर में shoot है, so I was even more excited. Then I got to know about Shahid, and I knew that people wanted to see us together on screen. So like everything was an add-on. And then Right. Stebbin, I have always told him, like, Payal is amazing and she's done a fab job. And Stebbin also, I worked with him before, and I have told him, even that time also I told him that you're going to go a long way. He's got such amazing different voice. So, all of my friends, and I felt nice to work. Pooja, I've worked before. I've worked with her, and it was an amazing experience to work with her. And she has been a sweetheart in this project. I can't tell you much, but I think कुछ चीजें आपके अंदर ही रह जाती हैं, but वो इतनी special होती हैं कि वो शायद जिंदगी भर आपके साथ रहती हैं. So Pooja has been a sweetheart that ways. All right. So I for Payal and Stebbin sir, how exactly has your music evolved from the beginning of your career up to now? आई थिंक डेफिनेटली हर दिन चेंज होता है और आप बहुत सीखते हो और एक अच्छे आर्टिस्ट की यही कला होती है कि वो सीखता जाए हर दिन और हर गाने से उसको सीखने को मिले. सो एवरी टाइम आई वर्क विद डिफरेंट म्यूजिक डायरेक्टर्स आई गेट टू लर्न अ लॉट और अपने आप में मैं खुद ही चेंजेस देख रहा होता हूँ, अपनी आवाज में चेंजेस देख रहा होता हूँ. जैसे जैसे मैं ग्रो हो रहा हूँ हर बार मुझे लगता है कि मैं ज्यादा कनेक्ट कर पा रहा हूँ सॉन्ग्स को. पहले मैं सिर्फ गानों को गाता था, अब मैं गानों में जी रहा होता हूँ एक्चुअली. सो इफ यू आस्क मी, कोई भी गाना जो मैंने गाया है मुझे लगता है कि उस गाने को मैंने इतना ज्यादा फील कर लिया होता है. जैसे कि अभी हिना कह रही थी कि वो हर चीज में काफी इन्वॉल्व होती है और वो लिटरली काफी दिनों तक होती है. तो मुझे लगता है कि ऐसे ही होता है जब मैं कोई गाने को गाता हूँ तो शायद कहीं ना कहीं मैं इतना कनेक्टेड होता हूँ सॉन्ग से कि काफी महीनों तक और काफी सालों तक मुझे लगता है कि मैं उस गाने में इन्वॉल्व हूँ कहीं ना कहीं और मैं फील कर पा रहा होता हूँ हर एक लाइन को. सो ये एक सबसे खास बात है जो मेरे अंदर अभी जो मैंने सालों में ऑब्जर्व करी है कि अब आज इस पॉइंट ऑफ टाइम मेरी लाइफ में मैं हर गाने से बहुत क्लोज हूँ और मेरा दिल जुड़ा हुआ है हर गाने से. तो बहुत मजा आता है जब कुछ बाहर आ रहा होता है तो और मैं सुन रहा होता हूँ उसको आने के बाद भी. तो it's a learning and I'm enjoying the process of this. I want to tell the same thing as Stebbin because I have learned a lot. क्योंकि मैं पहले बहुत गाती थी. Before I was a singer only, of course. तो हर म्यूजिक कंपोजर के पास आप जाते हो तो आपको हर बार एक डिफरेंट गाना गाने का मौका मिलता है, ऑफ कोर्स. एंड उसमें आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो जो टेक्निक से म्यूजिक कंपोजर बता रहा है. एंड सबकी कंपोजिंग स्टाइल अलग होती है, गाने के टाइप अलग होते हैं. तो ऑफ कोर्स सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है. हमेशा सीखने के लिए मैं भी तैयार रहती हूँ कि हाँ मुझे आज अगर कुछ एक नई चीज मिल रहा है तो मैं सीख लूँ इसको, आज ही सीख लूं. जो नहीं होता, जो इम्पॉसिबल होता है उसको मैं बहुत तरीके से कोशिश करती हूँ कि मैं इसको कैसे और बेटर बना सकती हूँ, मेरे से नहीं हो रहा क्योंकि. सो इट्स लाइक दैट कि हर बार हम लोग कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, वॉइस को मॉड्यूलेट करते हैं, देखते हैं कि इस गाने में हाउ आई एम साउंडिंग एंड उस गाने में हाउ आई एम साउंडिंग. आई मेक श्योर बिकॉज मेरे जो रिकॉर्ड्स है गानों के उस हिसाब से आप सुनोगे तो हर गाने में मैं डिफरेंट साउंड करती हूँ. एंड मेरी कोशिश भी यही रहती है कि मैं हर बार डिफरेंट साउंड करूँ क्योंकि एक टाइम के बाद ना मोनोटोनस हो जाती है चीजें. तो मैं उस चीज से थोड़ा बचना चाहती हूँ. एंड हर बार मैं चाहती हूँ कि इस बार कुछ अलग वॉइस टेक्सचर में गाओ, इस बार कुछ थोड़ा डिफरेंट गाओ. तो मेरी यही कोशिश रहती है. मैंने बहुत सीखा है, बहुत एक्सपेरिमेंट किया है अपने वॉइस को लेके. एंड अभी मैं एज अ म्यूजिक कंपोजर कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैंने तुम ही आना क्रिएट
क्रिएट किया या बारिश किया है एंड बेपना प्यार, सब सारे डिफरेंट सॉन्ग्स है जो भी आप सुनोगे। इवन हमारा जो रिसेंट प्रोजेक्ट था तुम बेवफा हो, वो दैट वाज डिफरेंट। जो भी गाने हैं, तो आई ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट समथिंग न्यू एंड हर बार मैं ये कोशिश करती हूँ कि पूरा एफर्ट के साथ अपने काम को अंजाम दूं। Of course. And Hina ma'am, last question for you. Please tell us, what is your skincare routine? I think you look flawless in Is it? yeah, with or without makeup, and a lot of fans would love to know. No, aisa nahi. I have an eyeliner on, see, and a little lipstick. It's not that I am without makeup. It's been 1.5 months. मैंने मेरे चेहरे पे कुछ नहीं लगाया. 1.5 months. So whatever you see, it's just the natural skin. Nothing at all, not even a moisturizer. I just wash my face. That's it. I don't do Wow. anything. So otherwise, I just follow what my dermatologists say. I do not use any products. कोई भी ऐसे cosmetic products नहीं. I just use the pharma brands, and that too, whatever my dermatologists say. I think it's high time. A lot of dermatologists, good dermatologists do say this, that after the age of 25, you should see a good dermatologist and start taking care of yourself, your skin, especially, and especially this if you're an actor or a public figure. So otherwise as well, even if you're a housewife, you want to take care of your skin. So you should consult a good dermatologist and stay away from the cosmetic products and follow the pharma products prescribed by your doctor. Thank you so much for joining us today. This Thank has been a lovely meeting, and all Thank the you. best. Thank you so Thank you. much, and hope to see you all soon. Yes, Thank you, so Divya. much. Thank you for Thank having you. us.